Hello, everybody. Welcome back. If you would bear with us, please, and be extra generous. We have a very shy, soft-spoken woman that we'd like to welcome to the stage that you likely don't know yet. No. It's my extreme, humbling honor, privilege, and pleasure to introduce the dynamo behind Kritya, Dr. Rati Saxena. First, I will give you a small introduction why I am coming for performing. In Hindi, the language in which I write, the poetry performance is a negative aspect. Nobody likes performance of poetry. If you perform, you are not a poet, one thing. Second thing, they don't like even music. When I present my poetry with music, they don't like. Though I know I write the poetry the way they write, but in Hindi, they don't like performance. And the performance like European people, like in yesterday Mark has performed and like they are performing, they just don't appreciate. But I feel when I visited so many universities, so many countries, I felt that the performance is very, very interesting to attract the youngsters. For example, I do not know what she is going to do, but if she keeps these toys and present in a school, certainly 10 students will start writing poetry because this will attract. And same thing, so that is why performance has its own power, which is never accepted in my country, in my language, maybe in other languages. In Malayalam they perform, like in the morning, Madhusudan Nair has performed. So, I am in Hindi, this is my sign, owl. And India, owl means fool. Owl means foolish person. But in other places, owl is very intelligent. So I am both. Fool as well as intelligent also. I must not say, but I am saying. So that is how, this is what, which is not accepted in my country, I want to do it. And that is why my performance may not be as good as European performance or other people like African performance. So that is my attempt only. Okay. So thank you very much. Be kind. And these poems I can read as other Hindi poets read, but I am just trying to perform that. शरणार्थी वे चले आए इस जमीन पर जैसे कि जहाजी पताका पर लिपटे समुद्री हवा विषुवत रेखीय प्रदेश में उमस भरी भोर में ओस या फिर बरसाती सांझ में रोशनी की तरफ उड़ते पतंगे। वे चले आए, कुछ इस तरह बस गए इस जमीन पर कि जैसे दरवाजों की सुरंगों में ततैयों के घरों में पोस्ट बॉक्स में गलत पते वाली चिट्ठी, इन बॉक्स में अनचाहे अनजाने में। वे चले आए, वे रम गए कुछ इस जमीन पर जैसे कि रंगीन प्यालों पे तैरते बर्फ के टुकड़े। अधूरी बनी इमारत में खंडर से लिपटी पतंगे। वे लौटते हैं हर रात दलदल के पार उन पगडंडियों पर जिन पर उनके पांव के निशाने सर्द हवा में रोंगटे से खड़े हैं। टूटी पतीलियों के पैंदों में भूख जमकर कालिक बन गई है। हर कदम लौटते हुए, हर कदम आगे बढ़ते हुए वे बिला जाते हैं इस जमीन की हवा में जो इनकी कभी नहीं रही।
वे चले आए इस जमीन पर जैसे कि समुद्री हवा, जैसे उमस भरी बोर में ओस, या फिर रोशनी की ओर उड़ान भर रही पतंग। परदेश की जमीन पर खौफसार, ड्रीमिंग इन अनदर लैंड, वह उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता, वह देखना चाहता था उसे मुस्कुराते हुए, वो मुस्कुराते हुए उसे देखना चाहता था, वो चाहता था उसे मुस्कुराते हुए, वो उसे नाचते हुए देखना चाहता था, वो उसे नाचते हुए देखना चाहता था, वायलिन के तारों पर सुरों सा, वह देखना चाहता था उसकी गोदी में सोते हुए बच्चे की होठों पर दूध की लकीर को, दूध की लकीर को, दूध की लकीर को, दूध की लकीर को, दूध की लकीर को। वह सहेजता रहा अपने डिब्बे में रखी बासी रोटी सा, वह उसे बचाता रहा, वह उसे बचाता रहा। अल्बेनिया सर्वेनिया के बीच चारों खिड़े, चारों ओर खिंचे बाड़े में कलियों की तरह खिलाए कांटों से, कलियों की तरह खिलाए कांटों से। वह उससे प्रेम करता रहा, वह उससे प्रेम करता रहा, वह उससे प्रेम करता रहा, अपने देश की सरहद से कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा। और फिर वह खो बैठा हकीकत से ऊपर सपनों की दुनिया में, बिल्कुल 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 अपने देश, अपने दुश्मन देश के युवा की तरह, अपने दुश्मन देश के युवा की तरह। Now I'm getting old, so the 3 poems are for my body pain. Every woman write on body, but I am writing on body pain. Varicose pain. कुछ चींटियां उतरती है मेरी जांघों से जमीन की ओर, उन सब सपनों को मुंह में दबाए जो जिंदा होने से बच गए। कुछ चींटियां उतरती है मेरी जांघों से जमीन की ओर, जमीन की ओर, जमीन की ओर, उन सब सपनों को मुंह में दबाए जो जिंदा रहने से बच गए, बच गए, बच गए। छोड़ती हुई नीली विस्मृतियां, छोड़ती हुई नीली विस्मृतियां अपने पीछे उतरती जाती हैं, जाती हैं, जाती हैं। उनके मुंह में पिघलते हुए दर्द, उनके मुंह में पिघलते हुए दर्द मुस्कुराते हैं नीली लकीरों में, नीली लकीरों में। और मैं सभी पीड़ाओं को तलबों में समेत हवाले करती हूँ धरती के, धरती के, धरती। वेरी क्लोज टू। मेरे धड़ के नीचे 2 थैले खड़े हैं हाँफते हुए, मेरी धड़ के नीचे 2 थैले खड़े हैं हाँफते हुए, लबालब मेरी ऊप के सामानों से भरे। इन ऊपों में है मेरे कामों की लिस्ट, इन ऊपों में है मेरे कामों की लिस्ट। ना जाने किस कमबख्ती कानून ने मुझे लिस्ट दी, और मैं राका की सहेली, और मैं राका की सहेली भूल गई इन सब कामों में कि मैं रक्त की बूंद भर भी नहीं हूँ, रक्त की बूंद भर भी नहीं हूँ, रक्त की बूंद भर भी नहीं हूँ। मेरी वेरिकोस की रेखाएं मुझ पर ठक 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 सवाल ठोकती हैं, और मैं अपने पंजों को हथेली में दबा चीख को अपनी जीभ के नीचे रख लेती हूँ, चीख को अपनी जीभ के नीचे रख। नी पेन। मेरी पिंडलियों के सिरे पे 2 खिले हैं 2 कनेर के फूल, मेरी पिंडलियों के सिरे पे खिले 2 कनेर के फूल, खिलते महकते और दौड़ लगाते। मेरी पिंडलियों के सिरे पर खिले 2 कनेर के फूल, खिलते महकते और दौड़ लगाते। चढ़ते रहे सभी चढ़ाइयाँ, चढ़ते रहे सभी चढ़ाइयाँ, बिना रुके थके कनेर झड़े गुडाले हुए, दर्द को चपचबाते हुए, चपचबाते हुए। मेरी धुरी पर रखी फिरकनियों से, मेरी धुरी पर रखी फिरकनियों से मेरे वक्त को मेरी हथेली पर खिलने तक, पंखों की चुर्रियाँ खिलने तक गुड़हल से 2 दर जगे मेरी यात्राओं पर लगाम
लगाते हुए, मेरी यात्राओं पे लगाम लगाते हुए मैं चलती हूँ, मैं अब भी चलती हूँ, मैं अब भी चलती हूँ दर्दों की तारों को पिंडलियों के सिर पर टांग कर, बर्बाद वक्त के हिसाब को भूल कर, उन सब दर्दों के खिलाफ, उन सब दर्दों के खिलाफ जो केंद्रीभूत हो गए हैं मेरे विरोध में, जो केंद्रीभूत हो गए हैं मेरे जांघों से कुछ नीचे, मेरी जांघों से कुछ नीचे। हंसी एक प्रार्थना है, हंसी एक प्रार्थना है, हंसी एक प्रार्थना है, हंसी एक प्रार्थना है जिसे दोहराव की जरूरत होती है। आलाप से लेकर स्थाई पर पहुंचने के लिए, आलाप से लेकर स्थाई पर पहुंचने के लिए सम्मित स्वरों की जरूरत होती है, सम्मित स्वरों की जरूरत होती है। हंसी का आलाप ईश्वर को जगाता है, हंसी का आलाप ईश्वर को जगाता है, स्थाई पर आते आते ये समय से जुड़ जाती है। हंसी का अंतरा सम के निकट आता है और ओठों की जगह आंखों से बह निकलता है, आंखों से बह निकलता है, आंखों से बह निकलता है। हंसी एक प्रार्थना है, हंसी एक प्रार्थना है उन सब अनदोहराई प्रार्थनाओं के खिलाफ, उन सब देवों के खिलाफ जो मेरे हंसने को बेहूदगी कहते हैं, जो मेरे हंसने को जो मेरे हंसने को बेहूदगी कहते हैं। थैंक्स। Knees for her. But beautiful poetry. Thank you, Rati. We should all give her another round of applause, because without her, none of us would be here. Right?